दिस इज BMW और BMW CE02 जो 4.49 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आता है इन बेंगलोर एंड ये सिर्फ फ्यू सेलेक्टेड सिटीज में ही अवेलेबल है. दिस इज BMW लोगो हियर. So this is the first premium scooter on Green Ride. And ride so far is very interesting. This looks really good and hey, acceleration is really amazing, man. Really amazing. इसमें basically आपको 3 driving modes मिलेगा and lot of features है. Very unique vehicle है. This is not an e-scooter, not an e-bike, e-parker. And this is very funky looking scooter है. Bike है और e-parker है. Very funky looking है. Very unique looking है. Targeting the young gen, the Gen Zs. And my god, look at the ride. There are 3 driving modes. Driving mode को change करने के लिए यहाँ पर there is a knob. So you have 3 driving modes: flow, surf and flash. Flash is the top acceleration mode. अभी हम flash mode में हैं. Flash mode में एक बार full acceleration देके देखते हैं. Ready? Wow. इस flash mode में 95 kmph is the top speed, 55 Nm of torque, which is almost comparable to Ola S1 Pro, to be honest. And my god, crazy. You have to be very careful in this, but accelerate होने पे भी very solid ride दे रहा है, confident ride दे रहा है because of the build quality, you know. This comes with the same build as the BMW R18, the double tubular steel structure, and इसमें आपको 3.92 kWh of battery capacity मिलेगा, जिसमें dashboard claims a range of 100 km and real world range from the customer feedback is somewhere around 85 and 90 km. And let's see यहाँ पर कितना handling comfort रहेगा इसमें. Nice. Road presence is खतरनाक man. It doesn't feel like this is very small. मतलब इसका seat height is very less. This is around 749 mm, which is less in comparison to Ather or Ola if you want to compare. But to be honest, this is out of comparisons, man. This vehicle is not scooter, not a bike, so you can't really compare. See, my god, this instant torque is crazy, man. बहुत अच्छा है. And regeneration is also very nice. See, अभी let's accelerate now, and then left the accelerator, and it's regenerating. So, in the flow mode, जो eco mode के बराबर है, इसमें अगर accelerate करके छोड़ें तो you have very less regeneration, बहुत हल्का सा regeneration रहेगा. इसके flash mode में if you just accelerate and release the throttle, you have stronger regeneration in this. Nano TFT display, no touchscreen of course. You can see all the information on the dashboard with these joystick controls. So if you want to check the trip information, so far trip 1 information and total odometer and pure ride. Pure ride is a mode. सिर्फ pure ride mode में on में रखें, then you don't have all this information. Just you have the speedometer and the regeneration का level and the headlamp. So now if you change the driving mode, then ideally regeneration level should go. हाँ, see, flow mode में regeneration का एक symbol है and surf mode में there is an indication to show इसमें acceleration कितना flow करेगा, and then the flash mode खतरनाक. अगर if you want to reverse in any driving mode, just this R button को hold करो, accelerate करो, and then the गाड़ी पीछे हो जाएगा. Simple. अब इसका braking strength देखते हैं. Ready? 3, 2, 1. Nice. Ready? 3, 2, 1. Front and rear disc with front ABS is doing some magic, man. इस e-parker का the sitting posture itself is very unique. It is not too low like Bones or Ather and not too high like Ola. This is थोड़ा सा wide and broader. Very unique stance है इसका. In spite of that, you have very easy handling. मतलब इस गाड़ी को ड्राइव करते हार्डली 2-3 मिनट में ही मुझे पूरा कंट्रोल में आ गया गाड़ी. एंड इसके फुट पेग्स एंड द सिटिंग पोस्चर में देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. इसमें यू हैव 2 टाइप्स ऑफ द फुट पेग्स. एक इधर आगे लाइक द लॉन्ग राइड वाला, द क्रूजर टाइप्स, और यू हैव द पीछे वाला विच इज मोर ऑफ एन अटेंटिव सिटी राइड टाइप्स. एंड द सीट कंफर्ट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, मैन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सीट. इसके बारे में कई रोक के हम बात करेंगे. ओके, लेट्स एक्सेलरेट अगेन. 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 62. And the road grip and the road presence is also really good because इसका tires are very broad, both the front and rear.
Front comes with 120, rear comes with 150 cross section. You have very good road grip on this. अब इसमें राइड के अलावा बाकी सारा क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं रोक के बात करें। रेंज एंड परफॉर्मेंस ठीक है, अब उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, फीचर्स, बहुत सारा चीज़ें हैं। दिस इज़ BMW CE02। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लुक्स देखो यार, कितना फंकी है, कितना यूनिक एंड कितना मॉडर्न, कितना फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है। लुक से बहुत अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। इनफैक्ट टू बी हॉनेस्ट, जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था, रोड में 10 लोग हैं, 8 लोग इसके तरफ ही देख रहे हैं। वेरी अटेंशन ग्रैबिंग, वेरी प्रीमियम लुकिंग। फ्रंट टायर से लेकर इसका गोल्डन एनोडाइज्ड सस्पेंशन, इसका बॉडी, इसका सीट्स, इसका रेड फुट पेग्स, रेयर व्हील, एवरी सिंगल थिंग इज जस्ट अटेंशन ग्रैबर। ये पूरा 2.2 मीटर्स का व्हीकल है, which is longer than Ather and Ola by 500 millimeters. ये 2200 millimeters का है and the wheelbase is 1800 mm, which gives a really good strong road presence. But इतना long होने पे भी you can't feel it कि ये long है on the road. मतलब you still feel it is very agile, it is very tiny and you'll have very good grip, very good control. अगर आपको छोटे छोटे गैप्स में से भी जाना है, घुसना है या फिर एक्सेलरेट करना भी है, you will have very great ride in this. And to be honest, Ather, ओला, iQube, तक हर EV टू व्हीलर को ड्राइव करने के बाद इसको मैं स्कूटर नहीं बोल सकता हूँ, बाइक नहीं बोल सकता हूँ, इसको BMW कॉल्स ई पार्कर। बट इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर EV, इसको चलाने के बाद आई फेल्ट यार, ट्रूली इंजीनियर्ड EV टू व्हीलर का मतलब क्या है। कहाँ से शुरू करूँ? लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड क्वालिटी। इसका टायर्स, ये कास्ट एल्यूमिनियम 14 इंच एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स है, वेरी वेरी गुड रोड ग्रिप है, बोथ फ्रंट एंड द रेयर। एंड ये मिचेलिन टायर्स है। Front comes with 120/80 14-inch alloy wheels. Rear comes with 170/70 14-inch alloy wheels. And these tires are optimized for less rolling resistance but more traction. इसका threading सी quite unique है, आपको road grip very easily मिल जाएगा। And for that road grip, अगर strong confident road presence भी हो, confident ride भी हो, थैंक्स टू द बिल्ड क्वालिटी, आप कहीं पे भी एक अनफिनिश्ड पैनल, एक अनफिनिश्ड वायर जो बाहर दिख रहा है, ऐसा एक भी नहीं दिखेगा। इट इज़ वेरी वेल फिनिश्ड। दिस एंटायर बॉडी हैज़ एदर एल्यूमिनियम, स्टील और हार्ड प्लास्टिक। सो इसका बॉडी इस डबल लूप स्टील फ्रेम है जो BMW R18 में भी यूज़ किया जाता है। एंड उसके साथ यू हैव दिस एल्यूमिनियम इजर एंड यू हैव दिस एल्यूमिनियम फोर्क एंड देन यू हैव हार्ड प्लास्टिक इजर टू कवर द केसिंग and the hard plastic to cover the suspension and the hard plastic mud guard for the rear wheel ताकि splashes से अब बचे। And then you have this sari guard which is also hard plastic, but this plastic also feels very premium। ऐसा उतने easily break हो जाएगा ऐसा feeling बिल्कुल नहीं है, very strong है। including the screws also, इसमें Allen key वाला screw मिलेगा which is very strong, very rigid। and in terms of weight, इस गाड़ी पूरा weighs 142 kilos with a battery capacity of 3.92 kWh, जो पूरे चार्ज में 108 किलोमीटर्स ऑफ रेंज क्लेम करता है, द IC80 claimed रेंज। बट द एक्चुअल रेंज एनीवे डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल एंड दिस रेंज एस्टिमेट लाइव अपडेट होता है ऑन द 3.5 इंच माइक्रो TFT डिस्प्ले। वेरी ऑनेस्टली यार, इसका सस्पेंशन बहुत बहुत अच्छा है। मतलब इन दैट रोड, चाहे पॉट होल हो, स्पीड ब्रेकर हो, रोड जितना भी गंदा हो, अगर उधर रोड भी ना हो, हमने जैसे रेंज टेस्ट में ट्राई किया था, जहाँ पर रोड भी ना हो, you will have very very smooth comfortable ride। but इसके बारे में I'll tell you in some time। and इसका rear suspension, you have this pre-loaded monoshock suspension on this which is covered in this hard plastic casing which is very nice, जो धूल से, बारिश से easily इसको बचा के रखेगा। and in terms of braking, इसमें आपको front and back disc brakes मिलेगा। front has ABS also। अचानक ब्रेक मारना है, you have to make sure कि दोनों ब्रेक्स में 60% फ्रंट एंड 40% रेयर ब्रेक मारे ताकि रेयर टायर लॉकअप ना हो एंड वेरी गुड रोड ग्रिप एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग भी मिले। एंड इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट, दिस इज़ वेरी यूनिक सीट। इसमें देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेदर एंड हाई ग्रेड फैब्रिक। इसको फर्स्ट देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें शायद सीट कंफर्ट उतना अच्छा नहीं होगा। एंड बाय द वे दिस कम्स विद ट्राई कलर, जो हाईलैंड वर्जन्स में ही आता है इन द CE02 एंड इंडिया में सिर्फ हाईलैंड मॉडल ही मिलेगा। फर्स्ट आई थॉट द सीट कंफर्ट में भी उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज इट इज़ वेरी एक यूनिक शेप में है एंड इट इज़ वेरी थिन ऑल्सो। इफ़ यू सी इट इज़ वेरी थिन, हार्डली इतना ही है। बट वेरी ऑनेस्टली मैन, जब इसके ऊपर बैठा, आई ड्रोव फॉर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर सो फार। राइड कंफर्ट बहुत बहुत अच्छा है। मतलब सो फार द बेस्ट राइड कंफर्ट आई हैव एवर हैड इन एनी EV स्कूटर और EV टू व्हीलर फॉर दैट मैटर। एक्सेप्ट द ओनली थिंग इज इफ़ यू आर एन अडल्ट, इसमें आप सिर्फ एक ही पर्सन ड्राइव कर सकते हो। देयर इज़ नो स्पेस फॉर पिलियन।
एंड येस, इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए. सो बेसिकली इन CE02 टू मॉडल्स है, द बेसिक वर्सन एंड द हाईलैंड वर्सन. एंड इन द बेसिक वर्सन सेम लुक्स है, बट उसमें टॉप स्पीड इज ओनली 45 kmph, 4 किलोवाट पावरफुल मोटर है, बट उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरी नहीं है. इसमें दिस कम्स विद 11 किलोवाट मोटर, टॉप स्पीड इज 105 kmph. ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बट उसके साथ वेरी केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, बहुत ध्यान से ख्याल से ड्राइविंग करना पड़ेगा. एंड इन टर्म्स ऑफ फुट पैक्स, इसका वेरी वेरी सॉलिड स्ट्रॉन्ग फुट पैक्स है, जो आपको दो तरीके का ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा. एक टू हैव एन अलर्ट पोस्चर इनसाइड अ सिटी और इन ट्रैफिक, एंड दूसरा टू हैव रिलैक्स्ड क्रूजर टाइप ऑफ पोस्चर वेल ड्राइविंग. एंड इसके सीट के बारे में देयर इज अ डिटेलिंग दैट दिस कम्स विद अ रफ टेक्सचर. सो इसके ऊपर आप जब भी आप बैठेंगे, एक्सेलरेट भी करें, चाहे आपके अपर बॉडी अबव योर चेस्ट एक्सेलरेशन की वजह से पीछे जाए, बट दिस सीट यू वोंट स्किड एट ऑल, यू वोंट स्किड. दिस गिव्स वेरी वेरी गुड ग्रिप. इनफैक्ट इतना ग्रिप देता है कि इसमें कोई स्टोरेज नहीं है, तो आप इसके ऊपर बैठ के आपके पैरों के पास भी कुछ सामान रखें, आप इस पर ऐसा बैठ के आपके पैरों के पास भी एक बैग या कुछ रखें, इट वोंट स्किड एट ऑल. वेरी गुड ग्रिप मिलेगा ऑन दिस. एंड इसके पिलियन ग्रैब रेल, इफ यू कैन फाइंड अ पिलियन हु कैन सिट बिहाइंड, ग्रैब रेल वेरी वेरी सॉलिड है. इनफैक्ट दिस ऑल्सो फील्स लाइक अल्यूमिनियम, एंड दिस ग्रैब रेल इज इंटीग्रेटेड विद द चैसी विद द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सीट. अब इसमें चार्जिंग कहाँ रखें? इधर इस केस को स्क्रू के तरह ऐसा आप निकाल सकते हो, and here you can find the charging port. And this is not like any port that we already have, this is a unique port. तो कोई public fast charger चाहिए तो the BMW or the BMW, they have to launch it themselves. And इसके side mirrors are same side mirrors across all the BMW bikes. Very premium, very practical. In fact this dashboard hinge also, ऐसा लग रहा हो कि ये सिर्फ एक ही joint से इधर connected है, but this is a metal joint which is very very solid. सो अब इसके साथ आपको 2 चार्जर्स मिलेगा. एक है रेगुलर चार्जर विच इज़ 900 वाट चार्जर, जिसमें 0 to 100 आपको चार्ज करने के लिए 5.5 आवर्स लगेगा. 20% to 80% चार्ज करने के लिए 3.5 आवर्स लगेगा. बट यू हैव एन ऑप्शन टू गेट अ क्विक चार्जर, जिसमें 1.5 किलोवाट चार्जर मिलेगा. उसमें फ्रॉम 0 to 100% 3.5 आवर्स लगेगा. 20 to 80% सिर्फ 1.5 आवर में चार्ज हो जाएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर पोर्टेबल चार्जर फॉर EV two-wheelers in India, this is the fastest. Even the fastest of the chargers, Ola S1 Pro maybe you have 750 watt. इसमें regular charger is 900 watt. And in terms of dashboard देखें, आप इसके ऊपर बैठ के इस लॉक बटन को आप एक बार टैप करें तो डैशबोर्ड ऑन एंड ऑफ होगा. अगर लॉन्ग टैप करें तो ऑफ होगा. एंड यू हैव अ टाइनी 3.5 इंच TFT डिस्प्ले, जिसमें यू कैन हैव द ABS ऑन एंड अ वार्निंग सेंसर फॉर द रेयर लाइट जो थोड़ा सा डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जो पीछे से कोई डैश किया. एंड इस साइड भी ऑल दिस बटन्स आर एक्सट्रीमली रेस्पॉन्सिव. सो दिस इज़ फॉर द ड्राइविंग मोड एंड दिस इज़ टू लॉक एंड अनलॉक. ये फॉर द इग्निशन ऑन एंड ऑफ, एंड दिस इज़ टू हीट द हैंडल्स, एंड दिस इज़ टू लॉक एंड अनलॉक द सीट बिकॉज अंडर दिस सीट is the battery capacity. And in terms of transmission, you have the belt drive, so you have slight whining sound from this vehicle. And this phone stand also, this comes as a default with this vehicle. And इसको अगर आप निकालना चाहते हो, it is very easy, just twist and pull. आ गया. This extremely easy, and there is a very smart connectivity feature इसमें. You have to just put it in and twist. अब हो गया, it is locked. And अगर इसमें आपके फ़ोन रख लिया, इस फ़ोन में आपके ऐप को इस जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल कर सकते हो फॉर द नेविगेशन, फॉर द ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, जो आई विल शो इन द रेंज टेस्ट. एंड इन टर्म्स ऑफ द हैंडल मैन, अटेंशन टू डिटेल गोज वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. दिस ग्रिप कम्स विथ वार्मिंग फीचर. ग्रिप वार्म कर सकते हैं, एंड दिस इज द कंट्रोल फॉर दैट. वंस दिस इज ऑन, यहाँ पर दिखेगा दैट इज इन लेवल 3. सो इसमें यू हैव 3 लेवल्स. दिस इज एट लेवल 2, लेवल 1 ऑफ, 3, 2, 1 ऑफ. इसके ऊपर आप हाथ रख के इसको ऑन करो. बिलीव मी, इट रियली वर्क्स मैन. इट रियली ब्लोस वार्म एयर. अगर बाहर ठंड है, स्पेशली इन बेंगलोर एंड दिल्ली के ठंड में बहुत काम है, स्पेशली फॉर अर्ली मॉर्निंग राइड्स, वो सच में इट हीट्स अप यार. इट इज़ रियली ग्रेट. एंड उसके अलावा यू हैव दिस रफ टेक्सचर ऑन द ब्रेक्स विच इज़ वेरी स्मॉल डिटेलिंग, बट इट केम रियली हैंडी इन माई ड्राइव. मतलब इन ऑल द स्कूटर्स, in all the EV two-wheelers right now, you have the glossy smooth texture वाला brake which is easy to slip. आपको अच्छे से ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, but this has this rough texture which gives a really good grip. and इसको आप adjust भी कर सकते हो. There is an adjusting lever for this. You can adjust this depending upon your requirement, which is really really smart.
एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग देखें, दिस व्हीकल कम्स एट एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 4.49 लाख प्लस द हाईलाइट फीचर्स आपको, जिसमें दिस गोल्ड एनोडाइज्ड फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, ट्राई कलर सीट्स मिलेगा एंड अ क्विक चार्जर मिलेगा। ऑल दिस कंबाइंड ऑन रोड प्राइस ऑफ रफली अराउंड 5 लाख होगा टू गिव अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 102 किलोमीटर्स। इन टर्म्स ऑफ वारंटी देखें आपको फॉर द एंटायर व्हीकल 3 years एंड अनलिमिटेड माइलेज का वारंटी मिलेगा एंड फॉर द बैटरी 8 years और 1.6 लाख किलोमीटर, इन दोनों में जो भी पहले आ जाए। एंड यू हैव 3 years ऑफ वारंटी फॉर द पेंट वर्क एंड 12 years ऑफ वारंटी फॉर द रस्ट। गाड़ी में इन एनी ऑफ द मेटल पार्ट रस्ट नहीं होना चाहिए, 12 years ऑफ वारंटी फॉर दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी देखें, इसमें यू हैव ABS, द फ्रंट ABS एंड वेरी ब्रॉड थिक टायर्स, जिसमें बहुत अच्छा रोड ग्रिप मिलेगा। बट उसके साथ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इन द व्हीकल, जो कोस्टिंग रीजनरेशन के साथ काम आता है, जो BMW कॉल्स रिक्यूपरेटिव स्टेबिलिटी कंट्रोल, जिसमें गाड़ी स्किड होने का चांसेस बहुत बहुत कम है। इनफैक्ट इट्स नॉट स्किड एट ऑल एंड वेरी गुड रोड ग्रिप मिलेगा। चाहे गाड़ी रीजनरेट भी कर रहा है, यू विल हैव वेरी गुड कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी ऑन द रोड। इसमें रेंज इज ओनली 100 किलोमीटर्स, उसको हम एनीवे रेंज टेस्ट में हम टेस्ट करेंगे। बट मोर देन दैट, व्हेन यू राइड इट, यू एक्सपीरियंस अ प्रॉपर इंजीनियर्ड व्हीकल विथ वेरी गुड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड मोर देन दैट यू विल एंजॉय दैट, आपको मज़ा आएगा विथ ऑल द प्रीमियमनेस, विद द अटेंशन टू डिटेल्स जो इस पर लगा हुआ है, दैट जस्ट मेक्स योर राइड मोर कंफर्टेबल एंड यू जस्ट क्रेव टू राइड मोर एंड मोर। मैंने सो फार इसको 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया एंड आई एम क्रेविंग टू राइड मोर एंड आई डोंट वांट टू गिव दिस व्हीकल बैक टू द शोरूम। उतना अच्छा राइड है, आई एम जस्ट एंजॉइंग द राइड। अगर बजट थोड़ा कम है तो ले सकता हूँ वाला फीलिंग भी है, दैट चुल भी है। बट फॉर दैट प्राइस मे बी थोड़ा रेंज थोड़ा ज़्यादा दिए होते, देन मे बी दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योर एक्सपीरियंस ऑफ एन EV टू व्हीलर, दिस इज़ रियली रियली ग्रेट। इसके बारे में आपको क्या लगा, आप कमेंट्स में बता देना।